Hello guys, I hope you all are good and my name is Ruturaj and welcome back to my channel GeoValley. In today's lecture we are going to cover a new topic from the atmospheric sciences. I have already uploaded one video on first video on atmospheric sciences, that is on the layers of the atmosphere. Okay, so you go through that video before watching this complete video, right? Because today's concept is lapse rate in the troposphere and atmospheric stability. So introductory part for this lecture I have covered in my first lecture of atmospheric sciences. Okay, so I request you to go through that video before watching this. And yes, today's topic is very important because if you have gone through NET syllabus along with the previous year question papers, you must know the importance of this topic for your exam. Okay, I'm not saying that I will cover all the important topics for your NET exam. I'm not a superman, because the exam is on 16th, right? 16th of September, and within 4 days it is not possible. So yeah, we will cover one by one. We will cover all the concepts of atmosphere, and then we will start oceanography also. Okay, geology I have already uploaded plenty of videos, so you can go through any of my playlist of geology. Okay, so before watching this video, if you are new to my channel, please do subscribe to get new videos on atmospheric sciences, then oceanography and geology, Okay, so let us start with the new topic, that is lapse rate in the troposphere and atmospheric stability. The concept of lapse rate I have already explained in my first video. Again I'm going to explain here, and before starting the lapse rate concept, I will tell you some important concept here. ये ट्री मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है. दिस इज आवर सन. Okay, and these are radiations which are emitting from the sun. Okay, so these radiations are getting emitted from the sun and traveling throughout the atmosphere, right? Atmosphere is a part of earth only, okay, which is bound surrounding the earth due to the force of gravity, right? सो ये जो रेज है ये ट्रैवल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू. अब एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तब हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी एंड सो ऑन हियर विजिबल, ओके, ये सब जो है अप टू रेडियो वेव्स. ओके, these are the डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? जो सन से निकल के रेज आ रहे हैं बाहर, उसमें जितने भी वेवलेंथ के रेज है वो सब इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो हमें पता है कि गैमा रेज आर हैविंग वेरी लेस वेवलेंथ. ओके, लोवेस्ट वेवलेंथ गैमा रेज का है और रेडियो वेव का सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है, मीटर्स में है वो. ओके, तो हमें पता है कि यूवी रेज तक, अप टू यूवी रेज, these short wave radiations, we call it short wave because the wavelength of these first three rays is very short, right? That is why we are calling it short wave radiation. These short wave radiations which are emitting from the sun are getting absorbed by the atmosphere or beyond the atmosphere. Okay, तो ये तीन रे जो है वो सरफेस तक आ ही नहीं रहे, हमारे पास अर्थ पे आ ही नहीं रहे, ठीक है. तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है, एक और बात, हमारा एटमॉस्फेयर जो है, दैट एटमॉस्फेयर इज नॉट गेटिंग हीटेड डायरेक्टली बाय द सन रेज. ओके, सन से जो हीट आ रही है उसके वजह से एटमॉस्फेयर हीट नहीं होता है, उसके वजह से ज़मीन हीट हो जाती है. ओके, सरफेस ऑफ द अर्थ इज गेटिंग हीटेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन. नाउ दीज रेज आर रिस्पॉन्सिबल टू हीट सरफेस ऑफ द अर्थ. अब एटमॉस्फेयर, हम अभी बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की. सो व्हाट इज़ द रीज़न
बिहाइंड द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। नो, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर, वो जो हीट है जिससे एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट हीट? सो हम बोलते हैं उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस क्या है हमें पता है, एक विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोल के है, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये होता है 2898 डिवाइड बाय वेवलेंथ, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर आ जाता है केल्विन में, इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो कौन से पीक वेवलेंथ पे अगर सन का रेज अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मतलब सन का पर्टिकुलर वेवलेंथ का रे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ज़्यादा अमाउंट पे सरफेस, अर्थ के सरफेस पे आ रहा है, तो उसका इफेक्ट मतलब जो जितना भी ज़्यादा आ रहा है उसकी वजह से जो अर्थ हीट हो रहा है। लेकिन अभी इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि वेवलेंथ, कौन सा वेवलेंथ अर्थ पे सबसे ज़्यादा आ रहा है सन से। तो सन से जो अर्थ के सरफेस से सबसे ज़्यादा आता है वो है 0.48 माइक्रोमीटर, और ये आता है विजिबल के ग्रीन कलर में। ओके, ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। अब सन से जो निकल रहा है उसमें से सबसे ज़्यादा 0.48 माइक्रोमीटर का वेवलेंथ जो है वो अर्थ के सरफेस तक आ रहा है। Now the question is which wavelength is getting scattered from the earth, right? So re-radiation बोलते हैं उसको, okay, re-radiated rays, क्योंकि ये पहले फर्स्ट रेडिएशन किससे हुआ है? सन से। सो दीज आर प्राइमरी रेडिएशंस। नाउ दीज रेज आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड गेटिंग re-radiated, ओके, इनटू द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ से जो री-रेडिएशन हो रहा है, सी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ IR, इंफ्रारेड। सो इंफ्रारेड इज हियर, इंफ्रारेड, ओके, सॉरी, आफ्टर विजिबल इंफ्रारेड, ओके। सो व्हाट इज द वेवलेंथ? इसका वेवलेंथ कुछ 9.8 अराउंड आता है, ओके। चेक करना बाद में, जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तब ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेचर जो है केल्विन में, वो इसका सरफेस टेम्परेचर होता है सोर्स का। अब इसका सरफेस टेम्परेचर, सन का सरफेस टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री केल्विन, और अर्थ का कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी 15 डिग्री सेल्सियस अर्थ का सरफेस का है। इसको अगर केल्विन में ये करोगे तो शायद आएगा 286 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। तो ये है सरफेस टेम्परेचर। यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर का वैल्यू लेना है, जो भी सोर्स है उसका सरफेस टेम्परेचर लेना है, ठीक है। तो ये अगर इसमें, अगर इसको इक्वेशन में अगर टेम्परेचर का वैल्यू डाल दोगे तो हमें मिल जाएगा वेवलेंथ, किस वेवलेंथ का जो ये है रेडिएशन वो पीक पे है, ठीक है। तो ये रेडिएशन कर रहा है, तो ये जो अर्थ रेडिएट कर रहा है वो इंफ्रारेड है। तो इंफ्रारेड, सो द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हीटेड ड्यू टू द री-रेडिएटेड रेज, दोज आर इंफ्रारेड, ओके, इंफ्रारेड इन origin, that is why we are our atmosphere is getting heated, okay. So the source of atmospheric heat is re-radiation from the अर्थ सरफेस, दैट इज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब हमारा अर्थ का जो है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है कि एटमॉस्फेयर का हीट जो है वो कहाँ से आ रहा है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कि हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग डिक्रीज्ड, राइट। तो यहाँ पे अगर मतलब ये देखो, एयर मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा पास है, लेकिन यहाँ पे अगर यही पार्सल जाएगा तो ये डेंसिटी कम हो जाएगा, राइट। सो द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोर नियर द सरफेस। एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर द डेंसिटी ऑफ एयर इज गेटिंग डिक्रीज्ड,
ऑपोजिटली इसके साथ अभी टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सरफेस से ऊपर, ओके, एज वी ट्रेवल फ्रॉम सरफेस टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर इज गेटिंग डिक्रीज्ड इन द ट्रोपोस्फियर, okay, this is very important in the troposphere. We are talking only about the troposphere here, because in stratosphere if we go in stratosphere the condition is ulta, right? So in the stratosphere with height temperature is getting increased due to the presence of ozone layer, right? So all these things I have explained in the previous lecture of the atmospheric sciences, okay. Only one lecture before this I have uploaded regarding this atmospheric sciences, okay. So you go through that lecture before watching this video, okay. So we call it लैप्स रेट. अब लैप्स रेट किसको बोलते हैं कि टेम्परेचर हाइट के साथ कम हो जाना. तो ट्रोपोस्फियर का लैप्स रेट कितना था, अगर याद है आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था, ओके. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैप्स रेट इन द ट्रोपोस्फियर, -6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. इसका मतलब क्या है ये मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है. सपोज हमारा एयर पार्सल यहाँ है, ये 15 डिग्री सेल्सियस. नाउ this value of temperature is average surface temperature of the earth, okay. We consider 15 degree Celsius is the average surface temperature on the earth surface. Now suppose we are going from surface towards the atmosphere. Suppose we go 1 kilometer from the surface is 0 kilometer, this is 1 kilometer, suppose this is 1 kilometer, okay. So surface value of temperature is 15 degree Celsius. Now as I mentioned before some time, what is the lapse rate in the troposphere, -6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाएगा. इसको बोलते हैं लैप्स रेट इन द ट्रोपोस्फियर, ओके. तो सपोज दिस इज 15 डिग्री सेल्सियस. अब 1 किलोमीटर ऊपर जाओ कितना आएगा, 15 - 6 होगा, ठीक है. तो अगर सरफेस टेम्परेचर 15 है तो 1 किलोमीटर के बाद कितना होगा, 9 डिग्री सेल्सियस, राइट. 15 - 6, इसके ऊपर और 1 किलोमीटर ऊपर जाओ कितना होगा, 3 डिग्री सेल्सियस. 9 - 6, क्योंकि 6 डिग्री सेल्सियस से कम करना है पर किलोमीटर पे, ठीक है. ऐसे ही अगर हम ट्रोपोपॉज पे चले गए, ट्रोपोपॉज कितने किलोमीटर पे होता है, 12 किलोमीटर, ओके. आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन द फर्स्ट वीडियो, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर. ये है वीडियो का नाम. तो लेयर्स का जो अपर लिमिट होता है वो उसको क्या बोलते हैं, ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं. तो व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर, दिस इज ट्रोपोपॉज. Tropopause is the upper limit of troposphere and average height of tropopause is 12 kilometer. This height is different at different latitudes, okay. So as we go from equator towards the pole, the thickness of the atmosphere is getting decreased due to the gravity effect, okay. So तो 12 किलोमीटर पे कितना टेम्परेचर होगा, ये होता है -50 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली, ओके. ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, हम जो वैल्यूज़ ले रहे हैं, जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली ले रहे हैं, ठीक है. तो ये परफेक्ट, जहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि 15 डिग्री सेल्सियस ही मिलना चाहिए, किसी दिन टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन एवरेज जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेम्परेचर है. तो इसके हिसाब से अगर हम ट्रोपोपॉज पे चले गए तो -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर आता है ट्रोपोपॉज का, ओके. So I hope you understood the concept of lapse rate. I have already explained this in the first video, but I repeated because this video is completely based on lapse rate, okay. So this concept you should understand, and in the troposphere, okay, the most important, we need to understand the concept of lapse rate in the troposphere. In the troposphere what is happening, the temperature is getting decreased with height, okay. So that is why we are calling it -6 degree Celsius per kilometer. Temperature is decreasing, right? That is why, okay. I hope you understood, and any doubt if you have till now, please comment in the below section, okay.
Okay, so we will move to the next concept, that is atmospheric stability. So before starting stability, I will tell you some concepts, some terms related to atmospheric stability, which will help you to understand overall concept of atmospheric stability. Okay, so before starting the atmospheric stability, I would like to introduce one concept, that is adiabatic change in the air parcel. Okay, so suppose we know this is surface. We know any parcel, any air parcel you take, consider this is as air parcel. Okay, and this is our, this height is suppose 12 किलोमीटर. ओके, इसको ट्रोपोपॉज कंसिडर करना. ओके, ये ट्रोपोस्फियर है पूरा, ये ट्रोपोपॉज है, मतलब ये ट्रोपोस्फियर है सरफेस से लेके 12 किलोमीटर तक. ओके, सो सपोज हमें अब क्या करना है कि इस एयर पार्सल को ऊपर लेके जाना है. ठीक है, अब ये ऊपर क्यों जाएगा, नीचे क्यों आएगा, ये सब मैं बताता हूँ. ठीक है, वी नो दैट द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, डेंसिटी ऑफ द एयर इज मैक्सिमम इन नियर द surface of the earth. Okay, overall atmosphere, if you consider, the density is highest near the surface, and as we go up in the atmosphere the density will decrease, right? So ये इस एयर पार्सल को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम है उस पर क्या इफेक्ट होगा. यहाँ पे जो है डेंसिटी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर का, तो ये कॉम्प्रेस्ड होगा ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसको फैलने के लिए जगह मिलेगा बहुत, एंड इट विल गेट एक्सपांडेड. द वॉल्यूम ऑफ दैट एयर पार्सल विल गेट इंक्रीज्ड, राइट? सो दिस एयर पार्सल विल गेट increased, the volume will get increased here, right? अब टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा. अब हमें पता है कि यहाँ नीचे जो है वो सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा है 15, और ऊपर जाने से ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कम हो जाता है. सो टेम्परेचर विल डिक्रीज. ओके, ऊपर जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज. ये 3 टर्म याद रखना. अगर इफ द एयर पार्सल इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द सरफेस in the upper atmosphere, the temperature will get decrease due to the lapse rate. Lapse rate I have already explained you. Okay, the volume of that air parcel will get increase due to the density difference, and density, we know density is getting decreased with the height, right? So that is due to the gravity effect. Please watch my first video of on atmospheric sciences. Okay, तो ये सब समझ गए. अब एडियाबेटिक चेंज क्या होता है, एडियाबेटिक कूलिंग क्या होता है देखते हैं. इसका टेम्परेचर सपोज 15 डिग्री सेल्सियस है. ऊपर जाने पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है ट्रोपोस्फियर में. सपोज यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये कूल हो गया ना. तो एयर पार्सल ऊपर जाने से इसका वॉल्यूम विल गेट इंक्रीज, एंड टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर विल गेट डिक्रीज. ओके, ये 2 टर्म याद रखना. ओके, तो क्या हो जाता है कि एज वी मूव एनी एयर पार्सल फ्रॉम सरफेस टू द अपर एटमॉस्फेयर, इट्स वॉल्यूम विल गेट इंक्रीज एंड टेम्परेचर विल गेट डिक्रीज. टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू द लैप्स रेट. वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस. समझ में आ गया. तो एडियाबेटिक कूलिंग किसको बोलते हैं, इस एयर पार्सल जब ये ऊपर जा रहा है तब इसमें से जो हीट है, ठीक है, तो हीट है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करता है. इसके अंदर जो हीट रहेगा वही हीट ऊपर भी रहेगा, वो सराउंडिंग के साथ कोई रिएक्शन और देवान घेवान नहीं कर रहा है. ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो हीट है वो ऊपर जाने से वही रहेगा. ओके, तो ये ऊपर गया, एक्सपांड हो गया. तो ये सब चीज़ें याद रखना कि जब एयर पार्सल नीचे से ऊपर जाता है तब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स related to this stability. Okay, now I will explain some stability, what is stability and why we call that particular atmosphere is stable and why it is not unstable. Okay, so we will go to stability.
stability and instability are these are two concepts. If you understand these two concepts clearly, then you can answer more than 50% of atmospheric sciences. Okay, so please pay attention, and if you have any doubts after completion of this video, please ask in the comment section. Okay, I am always there to solve your doubts. Okay, so ठीक है, now we have already I have already explained the movement of air parcel. Okay, now stability देखते क्या होता है. सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और हमारे पास एक एयर पार्सल है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है. ओके, suppose air parcel is having 10 degree Celsius and surrounding temperature is 15 degree Celsius. As we are geology students, if you are not, I will explain you. Mantle convection आपको पता है, mantle के बेस पे जो मैग्मा होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर का होता है. ज़्यादा टेम्परेचर का है तो वो राइज करेगा ड्यू टू द बायोन्सी इफेक्ट. बायोन्सी फोर्स ऑपोजिट टू ग्रेविटी लगता है, तो सब ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो मैग्मा है वो ऊपर की ओर ट्रैवल करेगा बायोन्सी की वजह से. और यहाँ पे कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर का जो मैग्मा है वो सिंक करेगा. ओके, सिंक करेगा कहाँ पे? बॉटम ऑफ द मेंटल, राइट. तो ये एक कन्वेक्शन फॉर्म कर रहा है ना, एक लूप फॉर्म कर रहा है, ठीक है. तो एक कन्वेक्शन फॉर्म करके एक यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है. नीचे वाला जो मैग्मा है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला जो कम टेम्परेचर वाला मैग्मा है वो नीचे जा रहा है. तो एक लूप फॉर्म कर रहा है, वो अनस्टेबल बना रहा है, ठीक है. अगर इस कंडीशन में यहाँ ऑपोजिट होता, यहाँ पे जो है वो कोल्ड होता, यहाँ पे जो है वो हॉट होता, तो ये ऊपर आता ही नहीं ना, क्योंकि कोल्ड जो होता है वो ज़्यादा डेंसर होता है और वो नीचे ही रहेगा. हॉट मतलब उसका एक्सपांड होगा. हॉट मतलब जिसको भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो एक्सपांड होता है, और वो एक्सपांड होने की वजह से ऊपर आता है, डेंसिटी कम हो जाता है, तो ये स्टेबल बन जाता है. लेकिन ये कंडीशन मेंटल में होता नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर में हो सकता है, ठीक है. मेंटल में नहीं होगा लेकिन एटमॉस्फेयर में हो सकता है ये कंडीशन. ओके, तो स्टेबल अनस्टेबल दोनों टाइप मिलेंगे यहाँ पे. यहाँ पे अनस्टेबल ही है, ठीक है. मेंटल में कन्वेक्शन ही होता है, तो वहाँ पे अनस्टेबल नहीं होता है कुछ. अगर मेंटल कन्वेक्शन बंद हो गए तो हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बंद हो जाएगा. जो कोर में जो है, ओके, आउटर कोर में जो मूवमेंट है वो भी कन्वेक्शन ही है. आउटर कोर में जो हो रहा है वो भी कन्वेक्शन है. और वो अगर जो आपने द कोर मूवी देखा होगा, ठीक है, वो ड्रिल करके कोर में जाते हैं, ये सब देखिए अगर नहीं देखा है तो, ठीक है. तो सपोज दिस एयर पार्सल इज हैविंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट इज 15 डिग्री सेल्सियस. नाउ हमें पता है कि 10 डिग्री सेल्सियस मतलब इससे कम टेम्परेचर है. कम टेम्परेचर मतलब ज़्यादा डेंसिटी. ज़्यादा डेंसिटी मतलब ये नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग का 15 है ना सब जगह पे, ठीक है, राइट. सराउंडिंग का 15 है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर है. अगर ये टेम्परेचर 20 होता, सपोज दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड सराउंडिंग इज 15 डिग्री सेल्सियस, देन this air parcel will rise due to the higher temperature than the surrounding. ओके, अभी बायोन्सी फोर्स एक्ट करेगा इस पर, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर इससे कम है. तो कम टेम्परेचर मतलब अभी सराउंडिंग का डेंसिटी ज़्यादा है और इसका डेंसिटी कम है. डेंसिटी कम, बायोन्सी फोर्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है. ये पार्सल ऊपर आ गया, मैंने बताया कि ऊपर आने पे इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है. डेंसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, ओके, और टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लैप्स रेट, अगेन लैप्स रेट की वजह से इसका टेम्परेचर कम हो जाता है. ओके, तो इसको बोलते हैं, अगर ये एयर पार्सल ऊपर जाके फिर ठंडा होके फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल एटमॉस्फेयर. ओके, इनस्टेबिलिटी है ना, स्टेबल नहीं है. पहला जो केस था यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग 15, ये स्टेबल था क्योंकि 10 डिग्री वाला नीचे ही रहेगा, ठीक है. 20 के ऊपर तो नहीं जाएगा ना वो, 15 डिग्री सेल्सियस के तो ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है. इसका टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगा. डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो नीचे ही रहेगा, ठीक है, नीचे रहेगा. तो वो जब इसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा करोगे
तब वो क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी कम हो जाएगा और फिर ऊपर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल। समझ में आ गया स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है एटमॉस्फेयर के केस में। ओके, मैंने जो ये मेंटल वाला एग्जांपल दिया था वो सेम कंडीशन है, ठीक है, वही कंडीशन बस एटमॉस्फेयर में अप्लाई करना है आपको। ओके, so these were some terms which were related to your atmospheric stability and which was very important to explain before starting actual topic of atmospheric stability. Okay, so few terms I will tell you and then I will explain atmospheric stability. There are 3 different conditions and from those 3 conditions only you are going to have questions in the exam. Okay, so pay attention, now the lecture is going to be very interesting. So I have already explained what is lapse rate. Okay, now lapse rate में 3 टाइप देखेंगे हम। 1 environmental lapse rate जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। 2 wet adiabatic lapse rate, I have already explained what is adiabatic process. देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। ओके, सो इसका आइडियल कंडीशन, आइडियल रेट जो है, रेट का मतलब क्या है कि जो बताया था 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, एक्चुअली वो -6 है बिकॉज द टेम्परेचर इज गेटिंग डिक्रीज विथ हाइट राइट इन द ट्रोपोस्फियर, दैट इज वाई वी आर टेकिंग इट निगेटिव। ओके, सो एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर माइनस वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट का मतलब है द एयर पार्सल विच इज़ हैविंग मॉइस्चर कंटेंट इन इट। मॉइस्चर मतलब वाटर कंटेंट है, तो इसको वेट बोलते हैं। इसका है -4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और ड्राई मतलब विच इज़ नॉट हैविंग मॉइस्चर कंटेंट इन इट, दैट इज, एंड इसका वैल्यू जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। ओके, अब एक कंडीशन बताता हूँ मैं। ये ट्री है, ठीक है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है। अब हम तीनों ले लेंगे। ओके, ड्राई, वेट एंड एनवायरमेंटल लैप्स रेट। नाउ दिस इज आइडियल कंडीशन। ओके, आइडियल -6 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया था कि एवरेज वैल्यू ऑफ द लैप्स रेट इन द ट्रोपोस्फियर, इसलिए हम लेते हैं कि एनवायरमेंटल लैप्स रेट। अभी एनवायरमेंटल लैप्स रेट जो है 6 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये लैप्स रेट की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज आर वैल्यूज़ ऑफ लैप्स रेट, आई डोंट नीड टू राइट दिस पर किलोमीटर एंड ऑल, बट आई विल राइट। ओके, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट एंड ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। 1 सेकेंड, यस। तो हमें पता है कि एनवायरमेंटल लैप्स रेट का वैल्यू -6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। अभी वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट का वैल्यू जो है, जो आइडियल केस में हम लेते हैं, वो है -4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और ड्राई का जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये वैल्यूज़ हमेशा सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। ये आइडियल कंडीशन बस एक बोल दिया मैंने कि ये समझने के लिए कि आपको ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। एनवायरमेंटल लैप्स रेट कैन चेंज। ओके, ये इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है, वो 3 कंडीशन हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझ लेना कि ये होता क्या है, ठीक है। तो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। हमारा सरफेस वैल्यू कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस, surface temperature of the average surface temperature of the earth. Okay, so suppose this is 1 kilometer line. Okay, from the surface we are going to 1 kilometer. Now environmental lapse rate पता है हमें कि surrounding environment जो है उसका lapse rate कितना है, 6 डिग्री। तो 15 - 6 यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस होगा आफ्टर 1 किलोमीटर if we travel, or if we take that air parcel, sorry not air parcel here, in environmental lapse rate we are not considering air parcel, wet adiabatic lapse rate and dry adiabatic lapse rate. In these 2 conditions we are going to consider air parcel, particular air parcel, and we are going to change their conditions according to the
एनवायरमेंटल लैप्स रेट। अभी इसका कितना होगा, एनवायरमेंटल का लैप्स रेट जो है वो -6 है, तो 15 - 6 9 डिग्री सेल्सियस होगा आफ्टर 1 किलोमीटर। ओके, फ्रॉम सरफेस टू द 1 किलोमीटर अबाव, ओके 9 किलोमीटर डिग्री सेल्सियस। अभी ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट का मतलब है ड्राई एयर पार्सल है एक, ठीक है, ड्राई एयर पार्सल है और एडियाबेटिकली उसको ऊपर, एडियाबेटिकली ट्रैवलिंग मतलब क्या है कि हीट उसका एक्सचेंज नहीं होगा एनवायरनमेंट के साथ, वो क्लोज सिस्टम है एक, ठीक है, दैट इज अ क्लोज सिस्टम विच इज नॉट एक्सचेंजिंग इट्स हीट विद द एनवायरनमेंट। ओके, तो इस एयर पार्सल का ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है -10 डिग्री सेल्सियस, तो इस एयर पार्सल का यहाँ पे जाके टेम्परेचर कितना होगा, 15 - 10 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब वेट एडियाबेटिक का कितना है, -4। दिस एयर पार्सल हैज़ मॉइस्चर कंटेंट इन इट, राइट, वाटर कंटेंट की वजह से उसका जो लैप्स रेट है वो कम है, तो 15 - 4 11 डिग्री सेल्सियस। तो ये है, ये दोनों है एयर पार्सल्स और ये है एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट है, ये ओवरऑल है, ये एयर पार्सल नहीं है, ये ओवरऑल एनवायरनमेंट है। तो ये दो केस में हमें एयर पार्सल कंसिडर करना है, ठीक है। ओके, तो अभी देखिए एनवायरमेंटल लैप्स रेट की वजह से यहाँ का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस, अब इसके बारे में सोचना है, ठीक है, बस 1 किलोमीटर लाइन जो है हमारा, सो थिंक अबाउट दिस ओनली। नाउ द एयर पार्सल which is wet, okay, wet, that is the air parcel which contains moisture in it, it's having temperature of 11 degree Celsius at 1 kilometer height, and dry adiabatic lap rate, that is dry air parcel, is having 5 degree Celsius after 1 kilometer. ओके, सो अभी देखिए स्टेबल और अनस्टेबल का कंसेप्ट जस्ट इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया। अब एनवायरमेंटल का टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस, इस एयर पार्सल का टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होगा, अभी स्टेबल और अनस्टेबल में इन दोनों, अभी ड्राई का 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। सो हियर व्हाट विल हैपन इन दिस केस, एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज 9 डिग्री सेल्सियस एंड दिस एयर पार्सल हैज़ टेम्परेचर ऑफ 11 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है कि इसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट से ज़्यादा है, ओके, सो 11 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन 9 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट विल हैपन, दिस एयर पार्सल विल राइज अप इन द एटमॉस्फेयर, इसका और राइज होगा, ठीक है, ये अपने आप ऊपर चला जाएगा क्योंकि बायोंसी की वजह से भी और टेम्परेचर की वजह से बायोंसी ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कम है, मतलब इसका डेंसिटी इसके कंपेयर में ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर कम मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, राइट, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब डेंसिटी कम है, तो इसके वजह से ये जो एयर पार्सल है वो राइज हो जाएगा। तो इन दोनों के केस में क्या होगा, ये जो है वो अनस्टेबल है, ओके, सो दिस एयर पार्सल इज अनस्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल लैप्स रेट। नाउ इन दिस कंडीशन, अब इन दोनों का सोचिए, ओके, environmental lapse rate and dry adiabatic. Now this air parcel is having 5 degree Celsius after 1 kilometer which is less than 9 degree Celsius. अब इसका एयर पार्सल का जो वैल्यू है टेम्परेचर का वो कम है, मतलब इसका डेंसिटी ज़्यादा है इसके कंपेयर्ड, ठीक है। अब इससे कंपेयर नहीं करना है क्योंकि ये एयर पार्सल अलग है, ये एयर पार्सल अलग है, हमें करना है एनवायरमेंटल के टेम्परेचर से, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट है एयर पार्सल उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर देखना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि इट इज़ राइजिंग और कमिंग डाउन, राइट। सो ये 5 डिग्री सेल्सियस है विच इज़ लेस देन 9 डिग्री सेल्सियस, सो डेंसिटी विल बी हायर, इट विल रिमेन एट द सेम पोजिशन, इट विल नॉट राइज, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेबल हुआ, ये एयर पार्सल स्टेबल हुआ, ये राइज नहीं करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, डेंसिटी ज़्यादा है तो राइज नहीं करेगा, तो यहाँ हो गया ये स्टेबल, ये एयर पार्सल जो है वो स्टेबल हो गया। तो इस केस को हम बोलते हैं कंडीशनल इंस्टेबिलिटी, ओके। कंडीशनल इंस्टेबिलिटी, अब कंडीशनल इंस्टेबिलिटी का अगर हमने ये देखा तो रिलेशन देखा, एडियाबेटिक लैप्स रेट का रिलेशन देखा तो क्या आएगा, देखिए
सबसे कम वैल्यू किसका है? वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट का, ठीक है। तो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट इज लेस देन एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज लेस देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है। आपको ये याद रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल इंस्टेबिलिटी एंड this depends on ideal condition of the atmosphere. Most of the times we see ideal condition, that is environmental lapse rate is 6 degrees Celsius. So environmental lapse rate is present in between these two values, wet and dry, right? Okay, so ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है एनवायरनमेंट में, इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कंडीशनल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि सॉरी एनवायरमेंटल लैप्स रेट के रिस्पेक्ट में जो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो अनस्टेबल है। वेट एडियाबेटिक पार्सल जो है, एयर पार्सल, वो अनस्टेबल है और ड्राई एडियाबेटिक पार्सल जो है वो स्टेबल है, मतलब ड्राई एयर पार्सल जो है वो स्टेबल है। तो इस केस में दोनों दिखाई दे रहा है हमें, स्टेबल पार्सल भी है, अनस्टेबल पार्सल भी है। अगर वेट पार्सल है तो अनस्टेबल होगा, ड्राई पार्सल है तो स्टेबल होगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंडीशनल इंस्टेबिलिटी। अब और दो है, ठीक है, ये याद रखना। और दो कंडीशन बताता हूं मैं। नाउ सपोज वेट एडियाबेटिक लैप्स, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है। अभी हमें ये करना है कि एनवायरमेंटल लैप्स रेट को इससे कम करना है और इससे ज़्यादा करना है। और एक और बात याद रखना कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, ओके। तो ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट से कम नहीं हो सकता है। एनवायरमेंटल लैप्स रेट इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, मतलब इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये दोनों का जो रिलेशन है वो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, ठीक है। तो दो और कंडीशन हम बनाएंगे यहाँ पे अभी एनवायरमेंटल लैप्स रेट का जो वैल्यू है वो हम सबसे कम रखेंगे, ठीक है। तो सबसे कम वैल्यू क्या है हमारा? 4 डिग्री सेल्सियस माइनस, देन वेट एडियाबेटिक्स -6 डिग्री सेल्सियस और ड्राई का 10 रखेंगे, ओके, माइनस। तो आफ्टर 1 किलोमीटर क्या होगा ये देखते हैं हम। अगर ये कंडीशन होगा तो क्या होगा? अभी ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन क्या है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज लेस देन, लीस्ट है ये, लेस देन वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट इज लेस देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है। तो ये दूसरा कंडीशन है हमारा। अब इसको क्या बोलते हैं ये मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी हमारा वेट वाला पार्सल एक है, ड्राई वाला एक पार्सल है। तो एनवायरमेंटल लैप्स रेट -4 है, वेट वाला है वो -6 है एंड ड्राई इज -10। नाउ आवर एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ इज 15 डिग्री सेल्सियस। नाउ आफ्टर 1 किलोमीटर हाइट व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ ड्राई एयर पार्सल? 15 - 10 कितना हुआ? 5, 15 - 4 11, 15 - 6 9 डिग्री सेल्सियस, ओके। दिस इज टेम्परेचर एट 1 किलोमीटर हाइट। एनवायरमेंटल का टेम्परेचर जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस है अभी, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है? 11 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर से दोनों का टेम्परेचर कम है इस केस में, ठीक है। इसका 5 है, इसका 9 है। तो बोथ द टेम्परेचर्स आर शोइंग लेसर वैल्यू देन द 11 डिग्री सेल्सियस, दैट इज एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ओके। सो इस केस में क्या होगा? एयर पार्सल्स जो है वो नीचे ही रहेंगे, ठीक है। इसका ऊपर ट्रैवलिंग नहीं होगा, राइज नहीं होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है एनवायरनमेंट का और इन दोनों का कम है। तो इन दोनों का ज़्यादा डेंसिटी रहेगा, इसका और इसका ज़्यादा डेंसिटी रहेगा। डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर कम है, डेंसिटी ज़्यादा। टेम्परेचर और डेंसिटी का रिलेशन बताया था मैंने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो इन दोनों का जो ये है पार्सल, एयर पार्सल जो है, दोनों वेट और ड्राई वो नीचे ही रहेंगे, ठीक है। तो स्टेबल एटमॉस्फेयर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे इनस्टेबिलिटी है ही नहीं, एक भी पार्सल ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंटल लैप्स रेट से, एनवायरमेंटल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है। अगर ज़्यादा होता टेम्परेचर यहाँ का तो ऊपर आ जाता, लेकिन दोनों का टेम्परेचर कम है इसलिए नीचे ही रहेंगे दोनों, मतलब एक वेट और एक ड्राई दोनों नीचे ही रहेंगे। तो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट क्यों बोला गया है? बिकॉज बोथ द एयर पार्सल आर शोइंग स्टेबल बिहेवियर, राइट। नो मैटर इट इज वेट और ड्राई, एनी एयर पार्सल, बिकॉज द एयर पार्सल्स आर हैविंग लेस टेम्परेचर देन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, सो they will not rise, no, right, understood, they will not rise, that is why we are calling it absolute stable। कोई भी एयर पार्सल लाओ एनवायरमेंटल से कम टेम्परेचर ही रहेगा इस केस में, इसलिए एब्सोल्यूट स्टेबल बोलते हैं इस केस को, ठीक है। नाउ वी विल गो टू थर्ड कंडीशन, नाउ वी विल मूव टू थर्ड कंडीशन। ये दो कंडीशन समझ में आ गए, यही आएगा एग्जाम में, अगर ये कंडीशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ये कंडीशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, यही आता है, ठीक है। सो नाउ वी विल चेंज अगेन। अब हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट को इन दोनों से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। सपोज एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज मैक्सिमम, इसको अभी 10 लेते हैं, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस। वेट विल बी लीस्ट -4 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इट द वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट कैन नॉट बी लेस देन ड्राई एडियाबेटिक, सो हियर 6 ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस, ओके। सो सेम कंडीशन, 15 - 6 9, 15 - 10 5, 15 - 4 11. Now in this condition what is happening? In absolute stability we saw both wet and dry air parcel having more temperature than the environmental lapse rate, right? Sorry, the lapse rate, wet and dry adiabatic lapse rate were greater than the environmental lapse rate. Now here the condition is reverse. Environmental lapse rate is more for environment, sorry, the temperature, environmental lapse rate value is more for ELR, right? Sorry. So okay, so what was the condition in absolutely stable atmosphere? The environmental lapse rate was showing lesser value than the wet and dry adiabatic lapse rate. Here what is happening? Here the condition is reversed. Now environmental lapse rate is having higher value, okay, highest value than these two values, WALR and dry one, okay. So now after 1 kilometer traveling, what is happening? We have done all the calculations and I have written all the values of temperature here, 9 degrees Celsius, okay. So after 1 kilometer, what will be the temperature of environment? This is 5 degrees Celsius, okay. So temperature of the environment is 5 degrees Celsius and other two parcels are having more temperature than the environmental temperature here, राइट। अब सपोज एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस ये है, और सपोज ये ड्राई और वेट का जो टेम्परेचर, एयर पार्सल ऑफ वेट एयर पार्सल एंड ड्राई एयर पार्सल आर हैविंग हायर वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर। तो हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर मतलब डेंसिटी कम रहेगा, डेंसिटी कम रहेगा तो ऊपर ट्रेवल करेगा, वो समझ गए, बायोन्सी की वजह से ऊपर ट्रैवल करेगा। अब जब कोई भी एयर पार्सल अगर नीचे से ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो वो अनस्टेबल बिहेवियर दिखा रहा है, राइट। तो इन बोथ द केसेस द एटमॉस्फेयर इज अनस्टेबल, राइट। कोई भी पार्सल ले लो, इफ वी कंसिडर वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट वाला एयर पार्सल, दैट इज वेट एयर पार्सल, then it is unstable because this is showing higher value than the 5 degree Celsius, that is environmental temperature. Again if we take dry air parcel, it is showing 9 degree Celsius after 1 kilometer, which is again showing higher value than the 5 degree Celsius, which is environmental temperature. So both the air parcels in these conditions are showing higher temperature and showing unstable behavior, right. So इस केस में क्या हुआ, सबसे कम किसका है,
wet adiabatic lapse rate. Wet adiabatic lapse rate is less than dry adiabatic lapse rate is less than environmental lapse rate. Now the important thing is you just need to focus on the position of environmental lapse rate in this condition, in these three conditions. Here it is in between these two, here it is lesser than these two, and here it is greater than these two. Now in this condition we call it absolute instability. Okay, so these are three different conditions for these three different terminologies. Okay, and questions are means in the exam you will get the similar questions on these concept, like absolute instability. If given in the question, then they will ask this condition in the answers. Okay, or the options they will give like 1, 2 and 3. Okay, so these type of questions are already been asked in the NET examination. Okay, so if you have gone through previous year question papers, you will get at least 3-4 questions from BA and C sections every part of the question paper. Okay, so I hope you understood all the concept related to atmospheric stability. And lapse rate I had already explained in the first video also, and today also I think I have cleared all the doubts which you had in the first video. Okay, so if you are new to channel, please do subscribe to my channel to get new videos on geology, ocean and atmosphere. Planetary science I will upload, but it will take some time. Okay, so thank you so much for staying connected till end of this video. And if you have any doubts, please put in the comment section. I will definitely reply. I am always there for any of your doubts. Okay, so thank you so much, and that's it for today. Thank you.